Hi everyone, this is Rashmi Nata, and it's been a long time. I did an online reading or posted any video of the reading. So, been getting so many requests, so many, in the form of love. People have been asking, "Ki please, do the online reading and the video recordings you used to do for your weekly readings." So, here I'm back with one of the reading in which I posted 4 mandalas एंड आपको उन मंडलाज में से एक मंडला को चूज करना था एंड यू वर सपोज टू आस्क फॉर द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड फ्रॉम द डिवाइन मदर. So here I am with the reading and love to be back after a long time, and thank you for all the love first of all, and gratitude for missing me and missing my readings. So this is for all of you who have been showing their love and affection throughout, and the unconditional love and support I have been receiving. And these are the 4 piles I have basically chosen. I have taken it for the reading. So this is for number 1, as usual. This is for number 2, this is for number 3, and this is for number 4. So these are the cards, और जो आपने number choose किए थे उसके basis पे I am going to give you a comprehensive reading this time. I have taken 4 decks for these, and the one is the yogic path. Thank you Menka Daya for this, the beautiful deck. And the second one is for it's from Densiline, the Sacred Traveler, and the next one is from the Abundance deck of Angels Abundance deck from Taurine Virtue, and the another one is also the Angels Messages, daily cards for angel messages. So these are the 4 decks I've taken, and I'll be giving the reading for your physical aspect, for your mental aspect, for your financial aspect, and the guidance from the angels in this reading. So let's get started and see what's in store for the number 1. Okay, let's get started for the number 1. So all the 4 cards are for the number 1, those who have chosen the number 1 mandala, and this is for your physical reading, that is your physical aspect. आपको अपनी body को लेके क्या चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए. This is for your finances, this is for your mental and the auric level, and this is the general guidance from the angels. So this is how we'll be proceeding with our reading. Let's get started with the number 1. All the 4 cards are for number 1. ये आपकी physical reading के लिए है. What is your body trying to put in? What are the message for your finances, for your auric, mental level, and these are the general guidance. So ये चारों उन लोगों के लिए जिन्होंने number 1 मंडला choose किया था. Let's get started with the reading. Let's see what is the first card, which is speaking about our body is craving for, or what is the message we should pay attention to. तो जिन्होंने भी नंबर 1 चूज किया था उनके लिए जो कार्ड आया है, दैट इज ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा. एंड एज यू कैन सी, हम सबको पता है लॉर्ड ब्रह्मा इज दी वन जिनके लिए बोला जाता है कि सृष्टि की रचना उन्होंने करी. ही इज द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन. जैसे कि लॉर्ड विष्णु को हम पालनहार बोलते हैं, ही इज द लॉर्ड ऑफ सस्टेनेंस, एंड लॉर्ड रुद्रा और द लॉर्ड शिवा इज बीइंग नोन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द क्रिएशन. तो ब्रह्मा का जो कार्ड है आपके लिए, उसका मैसेज ये है दैट लॉर्ड ब्रह्मा इज बीइंग नोन फॉर क्रिएटिंग. आपको अपनी बॉडी में, माइंड में जो क्रिएटिव एनर्जी है उसको प्लीज आउटफ्लो करने के लिए उनका एक आउटलेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा. Now what does this mean is कि आपकी बॉडी इज अ लाइव मैकेनिज्म, इज अ डिवाइन मैकेनिज्म, और आपकी बॉडी में परमानेंटली अगर मैं बोलूँ तो ऑन एन एवरेज एवरी सेकेंड द ऊर्जा और द क्रिएटिव एनर्जी फ्लोज इन. लेकिन जब एनर्जी फ्लो इन करती है और उसको हम आउटलेट नहीं देते हैं तो व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स जस्ट लाइक अ स्टैग्नेंट वाटर, एंड देन दिस स्टेल एनर्जी स्टार्ट्स पाइलिंग अप, एंड देन वी गेट इनटू द ट्रैप ऑफ द डिजीजेस. तो ये नहीं करना है. अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज किया है तो उन सब के लिए मैं बोलूंगी कि प्लीज अपनी क्रिएटिव एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढे. बी डांसिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, पेंटिंग, सिंगिंग, इट कुड बी एनीथिंग विच यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन. कुछ भी जो आपको लगता है, जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी को, जो आपकी सेक्रल में जो एनर्जी आउटफ्लो कर रही है, उसको अगर आप आउटफ्लो करने के लिए कोई माध्यम ढूंढ लेंगे, कोई मोडालिटी ढूंढ लेंगे, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज इट इज बीइंग वाइजली सेड व्हेन यू आर नॉट क्रिएटिंग, यू आर डाइंग. So please don't let your body fall ill, क्योंकि ऊर्जा है, एनर्जी है, अगर बाहर नहीं निकलेगी
प्रॉपर वे में, पॉजिटिव वे में तो निकलेगी तो, लेकिन काफी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन उसका हो सकता है. सो पे अटेंशन. In this era, we get so stuck up कि we are working 24 hours out of 24 hours, लेकिन जब हमारे एक्सप्रेशन की बात आती है तो हम उसको बहुत इग्नोर करते हैं. डोंट डू दैट गाइज, बिकॉज काम अपनी जगह है एंड आपकी बॉडी अपनी जगह है. अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैम्पर योर वर्क एज वेल. यू कैन नॉट परफॉर्म वेल विद अ बॉडी विच इज ट्रैप्ड इनटू द डिजीजेस और द नेगेटिव एनर्जीज. तो ऊर्जा आपकी बॉडी जनरेट कर रही है. आप एक क्रिएटिव आप पूरा एक इंसान जो है वो खुद अपने आप में ब्यूटीफुल क्रिएशन है ईश्वर का, यूनिवर्स का. तो उसकी ऊर्जा जो आपको बाहर लेकर आनी चाहिए. एक्सप्रेस योर सेल्फ, कनेक्ट विद द नेचर. आप पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, बीज बोइए. अगर आप एक सीड भी डालते हैं, दैट इज ऑल्सो अ माध्यम और अ मीडियम, अ वे टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिव एनर्जीज. डू दैट. डू एनीथिंग विच ब्रिंग्स joy to you. Do anything which allows your body, mind and soul to express creatively. तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रश लेके शुरू हो जाए अगर आपको पेंट करना नहीं आता है, बट डू एनीथिंग विच यू फील गुड आफ्टर परफॉर्मिंग. चाहे वो कुछ भी हो. आप यू आर नॉट अ प्रोफेशनल. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल डांसर फॉर letting your creative juices out. You can just shut down your door and perform on the song or anything you want to. It's for you. It's not for the world to show it off. So it's definitely for you. So I'll say don't ignore the messages of your body, because then it will take a toll on you. So please find a way to create something जो आपका खुद का हो. Be it as simple as getting a seed and planting it, so that आप उसको बाद में देख सको and खुश हो सको कि आपका क्रिएशन है. The second card which is for the finances is, जिन्होंने भी number 1 यूज किया था उनके लिए है block out distractions. So what does this mean, block out distractions? आपके फिनेंसेस में जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, दैट शुड हैव योर अनडिवाइडेड अटेंशन. अगर आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को या आपके जो गोल्स है, अगर आपको ये लग रहा है कि वो फ्रूटफुल, दे आर नॉट कमिंग टू डिजायर्ड रिजल्ट, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको फोकस होने की ज़रूरत है. डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और वो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं दे आर नॉट लेटिंग यू टू परफॉर्म वेल. सो आई वुड से दैट आप देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई पोस्टर अच्छा बनाना चाहते हैं, आप रीडिंग अच्छी करना चाहते हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग कि आप जाते हैं एफबी पे एंड सोशल मीडिया पे और आप उसको स्क्रॉल करते रह जाते हैं. सो दिस इज द कार्ड विच टेल्स दैट यू रियली नीड टू फाइंड इट आउट कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि काम करने आप घर से किसी और चीज़ पर निकलते हैं एंड इन द एंड यू फाइंड आउट कि आप कुछ और काम करते हुए एंड अप होते हैं एंड उसके बाद आपको ये महसूस होता है कि आपका दिन बर्बाद चला गया. सो अगर डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, चाहे लोगों का हो, if you find that you need to spend time polishing your skills or do your work, then you have to give priority to your work, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो डिमांड कर रही है. इस वक्त आपको जो भी चाहिए, जो भी आपका एम है, आपको अर्जुन की आंख की तरह उसकी तरफ you need to try, you need to get up for it, और आपको कोई भी किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करना है. बहुत बार हम काम लेके चलते हैं, एम लेके चलते हैं, लेकिन भटक जाते हैं. सो वो नहीं करना है. लुक अराउंड. मे बी पीपल आर वेस्टिंग योर टाइम, मे बी सोशल मीडिया वेस्टिंग योर टाइम, मे बी सम अदर डिस्ट्रैक्शंस आर टेकिंग अवे योर एनर्जी, योर enthusiasm and your ideas. Don't do that. Stop that right away. Distractions में मत आइए, because we do have a tendency of getting trapped into that, and then हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा सब बेकार हो जाती है, and then we end up wondering कि what went wrong. So if it is about building up something, give your time undividedly. Like I'm giving an example. If I'm supposed to do reading, I shut off my phone. I do that because मुझे पता है कि अगर मुझे ये करना है तो आई हैव टू सेट माई माइंड फॉर इट. आई लव डूइंग दैट, सो आई विल डेफिनेटली टेक आउट टाइम फॉर द कार्ड रीडिंग कम व्हाट मे. इट डजंट मैटर हाउ सो बिजी आई एम, बट आई विल डू दैट. सो अगर आपका कोई
एजेंडा है, आपको पता है आपको इतने टाइम में इतना काम पूरा करना है, तो डिस्ट्रैक्शंस को प्लीज रूल आउट करना आपको बहुत जरूरी है. नाउ द नेक्स्ट कार्ड विच इज फॉर द ऑरिक लेवल फॉर द नंबर 1, दोज हु हैव चोजन नंबर 1. Okay guys, healing energy flows through you. So yes, this card does tells कि आप एक इसमें mystic healer is the tagline for this card, and the card is very clearly showing a beautiful being is there, the new moon is there, a crown of new moon is there, an owl is there in the background, and it seems like mysticism का card है, background भी वैसा है, night है because the owl is awake and it is only in the night. So it does tells कि आपको अगर आपको रात में सोने में दिक्कत हो रही है, या आपको स्ट्रेस हो रहा है, या आपको इंसोम्निया हो रहा है, या आपको कोई चीज ट्रबल कर रही है विच इज टेकिंग अवे एंड गिविंग यू स्लीपलेस नाइट्स एंड इट इज टेकिंग अवे योर पीस ऑफ माइंड, देन प्लीज अंडरस्टैंड यू रियली नीड टू गेट योर सेल्फ हील्ड. अच्छा, आप कैसे करेंगे? हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू. तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि हर इंसान अपने आप में अपना हीलर है. इट्स नॉट दैट देयर आर ओनली फ्यू हीलर्स born into the world. Every child born into and coming into this world knows how to, the soul knows how to heal itself, and the problem is just to quiet your mind. तो मेडिटेट करें. और कब मेडिटेट करें? अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो रात में मेडिटेट करें, बिकॉज दिस कार्ड इज गिविंग अ सिग्निफिकेंस दैट नाइट्स आर फॉर दैट. और आप रात में सोने के पहले मेडिटेशन करेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू. तो रात में आप प्लीज मेडिटेट करके ही सोएं. जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, जो भी वो एस्पेक्ट है, आपको जो चीज परेशान कर रही है, आपके फाइनेंसेस, आपकी बॉडी, आपके रिलेशनशिप, आप उसको ध्यान में रख के मेडिटेशन करें. देयर आर सो मेनी मेडिटेशंस ऑन द यूट्यूब, देयर आर सो मेनी मेडिटेशंस अराउंड देयर ऑन द सोशल मीडिया. आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं. हार्ट चक्र के मेडिटेशंस हैं, चक्रास के मेडिटेशंस हैं. जिनको स्ट्रेस है या टेंशन है तो मैं उनको बोलूंगी आप हार्ट चक्र के मेडिटेशंस करिए. देयर आर इनन्यूमरेबल वीडियोस ऑन द यूट्यूब, गाइडेड मेडिटेशंस हैं, आप उनको प्लग इन करिए. और रात में सोने के पहले आप इसको जरूर से करिए. You can also do the chanting of the heart chakra mantra, that is YAM. Okay, YAM, YAM. आप उसकी भी chanting कर सकते हैं. और इंटेंशन डालिए कि जो चीज आपको इतना ट्रबल कर रही है, यू आर गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट. यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट. सो नथिंग टू वरी. आपकी सोल आपको हील करना जानती है. और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो यू कैन गेट अ प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ द हीलर, और सिंपली यू कैन कनेक्ट टू समवन यू ट्रस्ट और यू नो दैट द पर्सन विल गाइड यू. तो रात में प्लीज मेडिटेशन करके ही सोइए. भले आप 5 मिनट मेडिटेशन करें या आप 2 मिनट मेडिटेशन करें, डजंट मैटर, बट यू रियली नीड टू मेडिटेट एंड देन स्लीप, अदरवाइज इज गोइंग टू बी रियली टफ फॉर यू. नाउ द जनरल गाइडेंस फॉर द मंडला 1. Okay, and this is the card which tells steady progress. So जिन्होंने भी नंबर 1 चूज किया था उनको मैं बोलूंगी कि आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जो बाकी के कार्ड्स भी हैं दे आर बेसिकली ऑल्सो इंडिकेटिंग दिस. एंड आई वुड लाइक टू कनेक्ट द कॉर्ड्स विद द रीडिंग. कि हमारा फर्स्ट कार्ड जो था दैट वाज क्रिएशन, हमारा जो सेकंड कार्ड था दैट वाज ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस, एंड जो हमारा तीसरा कार्ड था हीलिंग का, यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट अबाउट समथिंग, एंड जो हमारा चौथा कार्ड है दैट इज अबाउट द स्टडी प्रोग्रेस. सो अगर हम इन चारों कार्ड को एक साथ रख के देखेंगे तो हम बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारा जो एंजल गाइडेंस है दैट इज स्टडी प्रोग्रेस. नो मैटर हाउ स्लो द थिंग सीम्स आउट टू बी, आपकी आपका बॉडी आपको एक्सप्रेशन के लिए पुश आउट कर रहा है. एक्सप्रेस योर सेल्फ, ट्राई टू ब्रिंग आउट द एनर्जी, बिकॉज एनर्जी का इनफ्लो है तो आउटफ्लो होना भी बहुत जरूरी है. डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखिए. आपको स्लीपलेस नाइट है, कोई चीज आपको ट्रबल कर रही है तो आप प्लीज रात में मेडिटेट करके जरूर सोएं, उस चीज को इंटेंशन डाल के. एंड जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हैं ना, तो यूनिवर्स इज गिविंग दैट स्टडी प्रोग्रेस इज देयर. यूनिवर्स इज एक्नॉलेजिंग योर एफर्ट एंड द प्रोसेस, and it is definitely going to bring your thoughts, feelings and emotions all into manifestation. तो ये कार्ड इन सारी लिंक्स को, इन सारे मैसेजेस को सील इन करता है, एज इन के टेल्स कि आप
परेशान नहीं होइए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, बट एज यू कैन सी दैट 3 fairies in the angels are in line and one is carrying flower, one is carrying light, another is carrying dove. तो ये सब कुछ क्या है ना कि love relationship, wisdom, knowledge, everything is going to come to you, whatever you're desiring. लेकिन जो एक्ट है वो आपको ही परफॉर्म करना होगा. द स्टडी प्रोग्रेस इज देयर, द यूनिवर्स इज डेफिनेटली इट इज एक्नॉलेजिंग योर एफर्ट्स, और उसमें प्रोग्रेस है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है. लेकिन जो मैंने गाइडेंस आपको दिया है फॉर ऑल दीज कार्ड्स, यू रियली नीड टू टेक देम इनटू कंसिडरेशन सो दैट इट कैन बी मैनिफेस्टेड फॉर योर हाईएस्ट गुड. सो दिस वाज फॉर नंबर 1. Please do take into account all the things I have told you, all the remedies I have given you into the reading, and the universe is telling you that चीजें जितनी stuck दिख रही हैं उतनी नहीं है. Progress is there. Progress हो रही है, भले वो आपको slow दिख रही हो या negligible दिख रही हो, लेकिन progress definitely हो रही है. So this was for number 1, and let's get into the reading for number 2 now. Now it's time for number 2, and number 2 के लिए भी 4 cards हैं. First for physical, second for financial, third for your mental auric, and for the general guidance. So let's get started and see what is in store for number 2. Okay, Jai Bajrangbali. So the card for number 2 physical आपकी रीडिंग के लिए, एस्पेक्ट के लिए आपको हनुमान जी का कार्ड आया है. एंड जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो मेरे थॉट में जो सबसे पहले एक चीज़ होती है द मंकी माइंड, बिकॉज दैट इज व्हाट द सिंबॉलिक मीनिंग इज फॉर मी. लॉर्ड हनुमान ने अपने हृदय में, अपने हार्ट में, अपने सोल में प्रभु राम को रखा, उनको अपना समर्पण किया, पूरा सरेंडर किया. दैट वॉज द रीजन दैट ही कैन अचीव द हाइएस्ट लेवल ऑफ भक्ति एंड मुक्ति एज वेल. तो अगर हम अपने मन को कहीं पे सरेंडर कर दें, कहीं पे हम उसको किसी एक ऊर्जा को, एनर्जी को, इट कुड बी गॉड, इट कुड बी मदर नेचर, इट कुड बी मदर अर्थ, इट डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू बी रिलीजियस एंड कनेक्ट टू एनी डेटी, बट अगर किसी भी ऊर्जा को, सुपर कॉन्शियसनेस को आप अपना माइंड सरेंडर कर देंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बॉडी एज वेल, बिकॉज अवर माइंड, बॉडी एंड सोल आर कनेक्टेड. सो गाइज, दोज हैव चोजन कार्ड नंबर 2, प्लीज मेडिटेट, बिकॉज आपका माइंड आपके लिए फिजिकल लेवल पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. एक्सेसिव ऑफ थिंकिंग गेट यू इनटू स्ट्रेस, देन द स्ट्रेस गेट यू इनटू बीपी, इनटू डायबिटीज, इनटू होल लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो इट्स साइक्लिक एंड कनेक्टेड. यू कैन नॉट से कि मेरे मन में क्या चल रहा है उससे मेरी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता. इट कैन नॉट बी लाइक. सो आपको ये चीज समझनी है कि आपको प्रभु की तरह, आपको लॉर्ड हनुमान की तरह आपको अपनी सारी एनर्जी जो है वो सरेंडर करनी है. टेम योर माइंड, दैट इज द बेसिक मैसेज. टेम योर माइंड, बिकॉज इफ योर माइंड इज नॉट कंट्रोल्ड एंड यू डोंट हैव डायरेक्शन टू गिव टू योर माइंड, योर बॉडी इज डेफिनेटली गोइंग टू सफर. सॉल्यूशन क्या है? भक्ति नहीं कर सकते हैं तो मेडिटेशन कर लीजिए. मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, गेट योरसेल्फ इनटू समथिंग विच engross, which requires you to get completely into that. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन प्ले चेस. आप जब चेस खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो उसमें आपको पूरी ऊर्जा लगानी होती है, आपको अपना मन लगाना होता है, आपको अपना ब्रेन लगाना होता है. कोई भी एक ऐसा काम करना शुरू कर दीजिए. अगर आप नहीं है, आपको स्पिरिचुअल कॉलिंग नहीं है, आपको रिलीजियस नहीं है, आपको किसी भी आध्यात्मिक उसमें आपका मन नहीं लगता है, तो मेडिटेशन में भी आपका मन नहीं लगता है, तो आप ये भी कर सकते हैं. स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्टार्ट अ वर्क. अगर आप फाइनेंशियली एबल है तो स्टार्ट गिविंग हेल्पिंग हैंड टू अदर पीपल. कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी ऊर्जा भी जो है सेंटर्ड हो सके और उसको भी एक जगह मिल सके एंकर करने के लिए. आपके मन को एक एंकर की जरूरत है. तो या तो उसको आप भावनात्मक रूप में, इमोशनल पैटर्न में आप उसको कर सकते हैं. लाइक आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू डिवाइन मदर, माई लव एंड माई हार्ट एंड एवरीथिंग गोज फॉर हर. सो आई नो कि व्हेन my mind starts playing trick with me, I surrender my mind to her. So if you can do that, very good,
मेडिटेट कर सकते हैं, वेरी गुड, नहीं कर सकते तो परेशान नहीं होना है. You just have to find out one activity in which your mind gets engrossed so much कि वो उल्टे सीधे जगह नहीं जाता. No, rubbish thoughts come to your mind when you're doing that. For example, I gave playing chess, playing some board games, playing something, or helping other people, doing something creative, doing something जो आपके मन को बांध के रख सके. क्योंकि मन अगर आपका मास्टर है तो इट्स अ वेरी बैड वन, अगर आपका स्लेव है तो बहुत अच्छी बात है. सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड. एंड इफ यू विल अगर मैं एक रेमेडी भी देना चाहूंगी कि अगर आप और कुछ नहीं तो आप लॉर्ड हनुमान के किसी फोटोग्राफ पे भी मेडिटेट अगर आप कर सकते हैं तो दैट विल बी ऑल्सो गुड. और अपनी शारीरिक या फिजिकल उसके लिए, हेल्थ के लिए मैं आपको बोलूंगी ओम हनुमते नमः, वेरी डिवाइन मंत्र ऑफ लॉर्ड हनुमान, आप वो भी चैंट कर सकते हैं. इट विल हेल्प यू अ लॉट. सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर द फिजिकल, for your body, what's the message for your body. Now the finances. Okay, for number 2, those who have chosen number 2, financial reading के लिए आपकी reading, it is safe for you to receive. आपको लेना भी आना चाहिए अगर आप देना चाहते हैं तो. आप हर चीज एक साइकिल में है, नेचर में, यूनिवर्स में चीजें आप अगर लेना नहीं सीखेंगे तो दे नहीं पाएंगे. यू कैनॉट गिव एंड सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी सोर्स अगर हमारा अबंडेंट होगा तो ही द मोमेंट देन ओनली यू कैन गिव इट टू अदर्स. सो आपको ये चीज ध्यान देनी है दैट यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दिस. आपको ये प्रॉब्लम आती है जिन्होंने भी नंबर 2 चूज किया है, या इस टाइम आपको इस चीज पे फोकस करना है. Maybe that is not the permanent problem with you, but you really need to understand that if universe is bringing some goodies for you, if someone is extending a helping hand, don't think so much and be receptive. Open your arms to receive and be a vessel for good coming to you, because आपके पास आएगा, आप अपना कप भरेंगे, आप अपने आप को फुलफिल करेंगे तो आप दूसरों को भी दे पाएंगे. आप एम्प्टी होंगे तो आप दूसरे को कभी नहीं दे पाएंगे. इफ यू इवन वांट टू हेल्प टू फीड अ hungry person, if you want to give clothes to the children, if you want to buy something for those who are underprivileged, you need to understand, you need finances for that, you need money. So अगर हम receptive नहीं होंगे तो universe won't be able to bless us with abundance. And then even if we are we are planning for doing something for the society or give back to the people who really need it, तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे. So it's vice versa. Don't stop yourself from receiving, because this card is very clearly saying that you need to understand safe to receive. बहुत लोगों को मैंने देखा गिल्ट आता है लेने में. If people give them some gifts or they appreciate them, they get into के पता नहीं हम डिजर्व करते हैं कि नहीं, ये सही है कि नहीं है. I have seen people doing that. Rather, I would admit very honestly that I was also on the same level few years back. If someone appreciated me or gave me something, feel like, oh, do I really deserve? नहीं, मुझे नहीं लेना चाहिए था, मुझे क्यों लेना चाहिए था, ये thoughts आते हैं. So please don't do that, because it is basically blocking you from receiving. नहीं लेंगे तो फिर देंगे कैसे? So this was the message for your finances. For your mental and your auric energy, I would say great adventure, take a risk, venture forward. So as you can see, ocean hai, sea hai, ship is there, and the ship is going into a direction. People are there rowing the ship, rowing the boat, and the message say take a risk, venture forward. तो आपको दिशा पता है, आपको डायरेक्शन पता है, you know where to venture out, you know where to move forward, universe is helping you. So you really need to take your step and you really need to start doing this, because अगर आप नहीं करेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी जो आपको नहीं करनी चाहिए. सो माइंड और ऑरिक लेवल के लिए मैं ये बोलूंगी कि आपको थॉट्स आ रहे हैं, आपको आइडियाज आ रहे हैं, आपका आपको सेंस हो रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. बट सोशल कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग होती है दैट वी टेंड टू फॉरगेट एंड वी टेंड टू इग्नोर अवर इंस्टिंक्ट्स, वी टेंड टू इग्नोर अवर मैसेजेस. डोंट डू दैट. द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर टू यू. आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी डायरेक्शन आ रही है, जो भी इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं, जो भी इंट्यूशन आपको हो रहा है, फॉलो दैट. आपको डर लग रहा है उसको करने में, या आपको डाउट्स आ रहे हैं उस चीज को करने में, या आपको लगता है कि आप तो हीलर नहीं है, रीडर नहीं है, तो आपको बिलीव करना चाहिए कि नहीं,
take a professional help if it is required, but do follow your instincts. Your instinct will never let you fail. और आपका intuition कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देगा. People can give you wrong suggestions, but your intuition will never ever give you wrong suggestion or the idea. So don't do that. आपको यूनिवर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस मिले लिखना शुरू करिए, चाहे आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके लाइफ के लिए. इस टाइम पे आप एक तरह से चैनलर हैं और यूनिवर्स आपको मैसेज चैनल करके दे रहा है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस मैसेज को आपको यूज करना है अपने बेनिफिट के लिए एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल दोज अराउंड यू. सो एन एडवेंचर इज गोइंग टू स्टार्ट. और होता क्या है, व्हेन वी आर सेट आवरसेल्व्स टू एडवेंचर, हमें डर लगता है, हमें भय लगता है, वी गेट इनटू एंजाइटी एंड स्ट्रेस बिकॉज fear of unknown is always there guys. Be it anyone, हमें हमेशा डर लगता है, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं. डोंट डू दैट. मैसेजेस लाउड एंड क्लियर, टेक अ रिस्क एंड वेंचर फॉरवर्ड. ये आपके बेनिफिट के लिए ही है, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट when you follow your intuition and instincts. Follow your guidance and again go for it. मुझे लगता है इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ तो एंजल्स रीट्रेट कर ही नहीं सकते हैं. गो फॉर इट. सो एज यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज दैट all the messages are in collaboration. They have a string attached to it. Positive expectations have been heard and answers, and you're working on this situation. और आपको इस चीज का भरोसा होना चाहिए कि जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, horse is there, rather it's a unicorn, and the angel is there, and it's a jungle, and we can see the other animals as well in the background. चलते रहिए. The message on the whole is कि आप यूनिकॉर्न पे बैठे हैं, एंड आप इस वक्त कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा. आपको डर भी लग रहा है बिकॉज आई कैन सी दैट like two panther and the cheetah is there in the background. तो आप अगर जब जंगल में से वेंचर कर रहे हैं और आप यूनिकॉर्न पे बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको डरने की जरूरत नहीं है. द अदर एनिमल्स वोंट हार्म यू. दे आर इन अलाइनमेंट. सी यू कैन सी दे आर वेरी क्वाइटली सिटिंग ऑन द टू ट्रीज सेपरेटली. तो वो अपनी अपनी जगह पे हैं. देख के डरने की जरूरत नहीं है. और इस टाइम जो भी आपका प्रेजेंट पाथ है, इट इज गोइंग टू टेक यू वेरी फार इंडीड. आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा. आपके डिजायर्स मैनिफेस्ट होंगे, आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट होंगे. चलते जाइए, डरिए नहीं. रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आए हैं तो भी डरिए नहीं. लेट्स सी, दीज वर द 4 cards फॉर अ recap. दैट meditate, keep your mind in control, don't let your monkey mind distract you. It is safe for you to receive. आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, आपको आइडियाज मिलेंगे. पीपल आर गोइंग टू गिव यू अ लेंडिंग एंड अ हेल्पिंग हैंड. रिसीव इट. एडवेंचर पे यू आर गोइंग टू स्टार्ट एंड यू आर ऑन सेट. गो फॉर इट इज द लास्ट मैसेज. एज यू कैन सी, माइंड को कंट्रोल करिए, रिसीविंग के लिए रिसेप्टिव रहिए, और जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी गाइडेंस आ रहा है, उसको कर डालिए. कोई आइडिया आ रहा है, डांसिंग स्कूल खोलना है, पेंटिंग वेंचर करना है, एग्जीबिशन लगाना है, कोई नई कंपनी खोलनी है, प्रोफेशनल लेवल पे अपनी हॉबी को लेके जाना है, जो भी आ रहा है इस वक्त मैसेज, accept it and start working on it, and will definitely be very good for you. It's done for number 3. Those who have chosen number 3, Mandala, these 4 cards are for you. So let's get started with the first reading for your health, for your फिजिकल रीडिंग. तो मैसेज है माँ धूमावती का. एंड माँ धूमावती की अपने एक स्टोरी है दैट शी इज द फॉर्म इन विच द डिवाइन मदर टुक द फॉर्म ऑफ अ विडो. एंड ये कार्ड जो है आपको बहुत लाउड एंड क्लियर ये बता रहा है कि बी थैंकफुल फॉर योर हार्डशिप्स. आपकी अगर आपने किसी बीमारी से रिकवर किया है तो डोंट कर्स द डिजीज कि मुझे बीमारी क्यों हुई या मैं क्यों इस सिचुएशन में हूँ. इट डज हैपेंस दैट वी forget to pay gratitude even to our struggles. सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं देना चाहिए. जो हार्डशिप्स होती हैं, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं या कोई और प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, आप कभी कोई बीमारी हुई है या एक्सीडेंट हुआ या कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपके लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से वो इंसिडेंट आपके हार्ट एंड सोल में डीपली एनग्रेव्ड है, उसको प्लीज जाने दें. पे ग्रैटिट्यूड टू दैट इवेंट एज वेल, बिकॉज
if you're alive, if you're watching this video, that means कि you have escaped out of that incident and आप अभी भी ठीक ठाक हैं, तो मुझे लगता है कि उसको आपको gratitude देना चाहिए. कुछ ना कुछ सिखाया होगा उस इंसिडेंट ने आपको. फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु नो मी वेरी क्लियरली एंड क्लोजली, दे नो दैट आई डू हैव अ physical implant, and I always say that I pay gratitude to that particular time period, because at that was the peak time when I was connected to the Divine Mother, to the divinity, to the super consciousness, because it gave a break to my very super hectic life, and I got to know why I am there on the earth. I got to know my soul path at that particular time. So आप जो भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप बीमार हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सो मोस्ट ऑफ द डिजीज आर साइकोसोमैटिक, आप प्लीज लेटिंग गो इज वन ऑफ द रिचुअल यू रियली नीड टू डू फॉर गेटिंग एंड लीडिंग अ हेल्दी लाइफ. तो आपको ये चीज थैंकफुल होना चाहिए. राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स टेलिंग दैट यू आर थैंकफुल फॉर ऑल द हार्डशिप्स the universe has given you. You are thankful for all the difficult lessons universe has given you, because today, now on, you are releasing all those energies with a learning. आपने जो सीखना था वो आपने सीख लिया. आपको जो चीज उस लेसन से आप एक वॉरियर बन के निकलने थे, आप एक स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी बन के आपको निकलना था, आप बन गए. अब उस इंसिडेंट को नेगेटिव वे में ट्रैप करके ना रखिए एंड लेट इट गो. सो रिलीज. आप रिलीज करेंगे तो आपके बॉडी में जो भी एनर्जीज जाके जो आपको ट्रबल कर रही है, एक्स हैं, आपको सर में दर्द होता है, या आपको पैर में प्रॉब्लम है, या आपको बैक एक रहती है, एवरी पेन इज सेइंग समथिंग. एवरी पेन, अगर आप जल्दी थक जाते हैं, योर बॉडी इज बेसिकली टेलिंग टेक केयर ऑफ योर इमोशंस, एंड व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस प्रॉपरली, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है. सो प्लीज पे अटेंशन टू वॉट योर बॉडी इज सिग्नलिंग एंड रिलीज करिए. रिलीज करेंगे आप अगर उन इंसिडेंट्स को, उन बीमारियों को जो वो आपको सिखाना चाहती हैं. आप एक्सेप्टेंस मोड में आइए, एक्सेप्ट करिए और उनको यूनिवर्स में गिव इट टू द यूनिवर्स दैट यूनिवर्स, आई एम रेडी टू लर्न द लेसन, make it easy for me, and I'm even grateful for the hardships because they have taught me and made me a better person. So do this ritual and it will be definitely beneficial to you. Do write a letter to the universe. Now for your finances, okay, it's a very good card, one of my favorites, clearing debts. तो ये जो कार्ड है ये आपको ये बोल रहा है कि आपके जो भी डेब्ट्स हैं दे आर गोइंग टू बी क्लियर्ड. सेल्फ केयर इन्वॉल्व है इसमें. सो रिमूव द हैवी बर्डन ऑफ फाइनेंशियल इमोशनल डेब्ट्स फ्रॉम योर लाइफ. यू विल फील लाइटर. कई बार हमारी चीजें इतनी खराब होती नहीं है जितना हम खुद को बना लेते हैं या हम खुद के लिए मान लेते हैं. सो गाइज, इफ देयर इज समथिंग विच इज रियली ट्रबलिंग यू, आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपके लिए रास्ता साफ कर रहा है. इट इज क्लियरिंग द वे फॉर यू, लेकिन आगे आपने ही बढ़ना है. इफ यू कैन सी इन द इमेज एंजल एंड अ फेरी सिटिंग ऑन अ यूनिकॉर्न, इट्स अ फ्लाइंग वन, और आपको इसी तरीके से बिलीव करना है यूनिवर्स की एनर्जी पे, दैट जिस तरीके से दैट गर्ल इज सिटिंग ऑन फ्लाइंग यूनिकॉर्न, इज फ्लाइंग अवे and she is moving towards the heaven. A rainbow can be seen as well on the figure and the image. तो इतना ज़्यादा सीरियस ना होइए. जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, they have been taken care of. Sometimes you really miss the joy of the ride. कई बार हम उस रास्ते में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं. वो हम इंद्रधनुष देखना भूल जाते हैं, हम वो रेनबो देखना भूल जाते हैं जो कि हमें रास्ते में दिखता है. सो अपना ध्यान रखिए, बिकॉज अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा इंटेंसली लेके करेंगे ना, तो वो चीज आपकी डिले होती जाएगी. इवन इफ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स हैविंग अ गुड बैंक बैलेंस, अगर आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं, फिनेंसेस अच्छा करने चाह रहे हैं, जॉयफुल होके करिए, खुश होके करिए, लाइटर वे में करिए, एंड डोंट पुट एंड बाइंड योरसेल्फ विद ऑल दीज थिंग्स. ये 3D रियलिटी है. तो 3D रियलिटी में जो भी चीजें वो कभी परमानेंट नहीं होती हैं. एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी एज इट इज.
Today you are into debt, and if you will work towards clearing your debts with a free mind, with a lighter mind, bring some joy into your journey of having a good financial status. अगर आप ये करके करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मुझे लगता है आपके डेब्ट्स जल्दी क्लियर हो जाएंगे. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस कि आप रिलीज करिए. हमारा फर्स्ट कार्ड भी रिलीज का था, सेकंड कार्ड भी क्लियरिंग डेब्ट्स. आपके डेब्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट ब्रिंग सम जॉय. डोंट मिस दी रेनबो ऑन द वे, कि इतना सीरियस हो जाएं कि हम ये भूल जाएं कि हमने द रेनबो वॉज ऑल्सो देयर ऑन अवर वे. एंड डोंट मिस द ब्यूटी ऑफ द जर्नी. द नेक्स्ट कार्ड इज फॉर योर mental health, that is ascending the mountain. पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं, but keep going forward. ऊंचे कितने भी हों और मंजिल कितनी भी दूर हो, अगर हम कंसिस्टेंटली चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल को जरूर पा जाएंगे. सो ascending the mountain, आप बड़े काम करने के लिए आपको इस वीक आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. यू विल फील द you will have that joy of accomplishment. And that will come from when you will see at the back of the journey कि आप कहाँ कितनी दूर चल के आए हैं. जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि you have accomplished it and you are basically ascended the mountains and it is not for everyone. तो आपको इस हफ्ते इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और अगर आप रास्ते में थक कर, रुक कर, हिम्मत हार करके अगर आप रुक जाएंगे तो ये याद रखिएगा कि यूनिवर्स उनको ही हेल्प करता है जो अपनी जर्नी पे बिलीव करते हैं. सो बिलीव ऑन योर जर्नी. आपकी अपनी एक जर्नी है जो आप लेना चाह रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं, तो उस पर बिलीव रखिए. एंड यूनिवर्स इज डेफिनेटली टेलिंग यू कीप गोइंग फॉरवर्ड. हारना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है. मन परेशान करे तो प्लीज रिलीज करने पे काम करें. आपके फाइनेंसेस आपको परेशान करें तो ये जानिए कि यूनिवर्स इज गोइंग टू क्लियर डेब्ट्स. और अगर आपको थक जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या आपको लगता है कि बहुत बड़ा टास्क हो गया है, ये वीक जो है कुछ भी रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो इट्स अ क्लियर मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स. इट विल डेफिनेटली गिव यू द अकम्प्लिशमेंट. अचीवमेंट्स है ऑन द कार्ड्स, बट यू रियली नीड टू कीप गोइंग फॉरवर्ड. रुक जाएंगे तो जहां हैं वहीं रहेंगे, देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव. And acceptance. Angels are telling, see yourself and others through the eyes of the angels. Unconditional love and acceptance. In this way, inspire and lift everyone to their highest potential. Acceptance लेकर आइए. आप जिस जर्नी में हैं, कई बार हम अपने कलीग्स को देखकर, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर, हम दूसरे लोगों को देखकर हमें लगता है उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या उनको बिना कुछ किए मिल जाता है. दे हैव so much of abundance without putting so much of effort. It never happens like this. Maybe the karma is there. उन्होंने पास्ट लाइफ में उतने एफर्ट्स डाले हों या आपको नहीं पता किसी की जर्नी क्या है. Don't judge. Don't judge other people because it is going to create an obstacle in your life. You really don't know what the other person has gone through. आपको बैकवर्क नहीं दिखता है किसी का, हार्डवर्क आपको नहीं पता होता है. सो डोंट जज ऑन द फेस वैल्यू कि उसको तो बैठे बिठाए जो सक्सेस मिल रही है, मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी. डोंट डू दैट. ब्रिंग सम अनकंडीशनल लव इनटू योर लाइफ. Open your heart for acceptance for everything in your life and you will definitely rise to your highest potential and for others as well. So recap for number 3, माँ धूमावती telling for your body and for your mind, please release जो भी नेगेटिव ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस है, ट्रोमैटिक इवेंट्स का जो ट्रॉमा आप में एनग्रेव्ड है उसको रिलीज करिए. राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स. Debts are going to be cleared. So yes, a very good time, good message. Hard working is being paid off. आपको इस हफ्ते कहीं ना कहीं से financial help मिलेगी in paying your debts off. And जो करते आ रहे हैं करते जाइए और आपको रुकना नहीं है. आपको मन को अपने इस तरीके से रखना, स्थिर रखना है कि वो आपकी जर्नी में अड़ंगे ना लगाए, ऑब्स्टिकल्स ना क्रिएट करे. कीप ऑन मूविंग एंड यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू सेट योर गोल टू. एंड थोड़ा सा नॉन जजमेंटल हो जाइए. डोंट जज अदर पीपल एंड देयर जर्नी. एक्सेप्टेंस लेके आइए कि अगर मेरी लाइफ में मेरी जर्नी धीरे धीरे चल रही है, मिलेगा, हार्डवर्क का पे ऑफ मिलेगा. शायद अभी नहीं तो कल मिलेगा. बट जब आप दूसरों को जज करने लगते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी को लो कर लेते हैं, विच इज अगेन गोइंग टू ब्रिंग यू टू द फर्स्ट साइकिल जहां पे आपको फिर से रिलीज करना पड़ेगा. डोंट मेक इट टू हार्ड फॉर योर सेल्फ. कीप ऑन गोइंग. गुड फाइनेंशियल न्यूज कमिंग योर वे एंड यू विल बी डेफिनेटली अचीविंग द सक्सेस.
Now the last one for the number 4, and this is the first card we have been reading for your health. Okay, for number 4 those have chosen, please आप hydrated रखिए अपने आप को, because माँ भुवनेश्वरी is there. और इफ़ पॉसिबल प्लीज़ ग्राउंडिंग करिए अपनी जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं. दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सजेस्ट कि प्लीज़ ग्राउंडिंग मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए टिल द टाइम यू आर सो काम एंड सो स्टिल दैट यू एंटर इन टू द डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन. दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. मून साइकिल्स आर देयर, तो प्लीज़ अपने आप को, अगर आप मून वाटर रिचार्ज करके इफ़ यू कैन टेक इट, तो वो ज़रूर से करिएगा. डू द मून मेडिटेशन. आप रात में 15 मिनट तो मून मेडिटेशन ज़रूर करिए. सॉरी. और आई विल सजेस्ट कि आप मून के साथ टाइम स्पेंड करिए. दैट इज, आप बैठ सकते हैं अराउंड नियर अ विंडो और ऑन टेरेस, जहाँ पे मून एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर सकें. नंगे पाँव अगर आप चल सकते हैं फॉर 15-20 मिनट्स ऑन द गार्डन और ऑन द ग्रास, प्लीज डू दैट एंड टेक केयर ऑफ योर हाइड्रेशन लेवल. प्लीज कीप योरसेल्फ fully hydrated, because this week can definitely bring you some problem of hydration. You can have some infection, or you can have some sort of trouble into your hydration system. You can have you need to keep in check your water levels. Drink a lot of water. Walk bare feet on the ground, on the garden, on the grass, and try to meditate on the mother moon. And this week you should keep a check on all these facts, so that आपको ज़्यादा problem ना हो. And the blessings of माँ भुवनेश्वरी is there. So if you can see the card, you can also meditate on this card as well. आप इस कार्ड का स्नैपशॉट लेके वीडियो से आप इस पे मेडिटेट कर सकते हैं. इट विल ऑल्सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिलीफ इन यू. और अगर आपको रात में सोने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज मून मेडिटेशन जरूर करके सोइएगा. एंड प्रे टू गॉडेस मून दैट शी शुड गिव दैट हर एनर्जी, हर काम एनर्जी, हर पीसफुल एनर्जी टू यू, सो दैट आपको इस वीक सेल थ्रू करने में हेल्प मिले. नाउ द फाइनेंसेस. Okay, exercise to increase your energy manifestation abilities. So आपको हाई एनर्जी लेवल्स की ज़रूरत है. और हमने जैसे देखा कि पहला कार्ड जो था हमारा वो हाइड्रेशन का है. वाटर लेवल कम होगा तो आपकी एनर्जी बहुत स्टूप डाउन हो जाएगी. सो डोंट डू दैट. और इसमें भी अगर आप देख सकते हैं तो द फेरी एंड द एंजल इज इन अ गार्डन. तो एंजल्स हैव अ हैबिट ऑफ रीट्रेटिंग द मैसेज टिल वी ऑलवेज गेट इट राइट. बार बार वो वही चीज रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हम उसको बिल्कुल आत्मसात नहीं कर लेते हैं. सो इट्स अ फनी एंड अ ब्यूटिफुल थिंग at the same time. So please walk barefoot on the garden और एक्सरसाइज करिए, क्योंकि अगर आपका एनर्जी लेवल प्रॉपर रहेगा तो ही आप काम कर पाएंगे. एंड इन दिस वीक आई फील दैट सम इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट विल बी देयर फॉर यू. सो दोज हैव चोजन नंबर 4, आई विल से कि आपको अगर प्रॉपर तरीके से 7-8 घंटे काम करना है और आपको अपने प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर रूप में इम्प्लीमेंट करना, मैनिफेस्ट करना है, तो प्लीज अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें. अदरवाइज यू विल हैव अ हार्ड टाइम. सो प्लीज कनेक्ट विथ नेचर, कनेक्ट विथ मदर अर्थ, कनेक्ट विद द मॉर्निंग में. अगर आप बेयरफुट वॉक कर सकते हैं गार्डन में, ग्रास में, आपके घर में नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा अपने आप को जो है फ्लावर से या आप फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं. कीप योर डाइट ऑर्गेनिक, कीप योर बी नियर टू मदर नेचर इन विच एवर फॉर्म यू कैन, बिकॉज आजकल मेट्रो सिटीज में ये फैसिलिटीज नहीं होती. यू कैन नॉट हैव अ गार्डन एंड यू कैन नॉट हैव दैट प्रिविलेज ऑफ वॉकिंग बेयरफुट इन द मॉर्निंग. तो कोशिश करिए कि अपने आसपास नेचर एलिमेंट जरूर रखें. एंड इफ नॉट, कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो आई सजेस्ट दोज हैव चोजन नंबर 4 कि आप चिड़ियों को दाना जरूर डालें. फीड द बर्ड्स, और इससे आपके फाइनेंसेस भी इंक्रीज होंगे एंड आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो स्पीड अप होगा. सो दिस वाज द फाइनेंशियल रीडिंग फॉर द माइंड. आई वुड से ग्रैटिट्यूड. वाह, just love the image on the card. Grace and gratitude. Through gratitude joy expands. So give. And जब आप देते हो किसी को तो उससे वाकई आपको बहुत मैनीफोल्ड आपको मिलता है. लेकिन it's a double track. I've seen people doing giving doing something for the society and giving,
with the expectation कि उनको 10 गुना उससे मिलेगा. Guys, this doesn't work. When you give unconditionally, na, then the universe is going to bring it manifold back into your life. And when you're giving with greed, when you're giving with an expectation कि you're giving 10 rupees and get 100 rupees the very next moment, it spoils everything. Learn the art of giving, unconditional giving. And when you will give, the universe will definitely bring a lot back into your life with grace. तो आपको देना सीखना आना चाहिए और अनकंडीशनली आना चाहिए. I would like to quote over here because I am in direct interaction with people. I see, like, you know, when I tell people कि you should, you know, learn the art of giving, they say कि हम तो अपने नए कपड़े जो होते हैं we give to the children and हम ये करते हैं वो करते हैं. I just wonder कि कितना, मतलब आई हैव सीन पीपल कीपिंग अकाउंट कि अच्छा पिछले महीने मैंने 4 कपड़े दिए थे, उसके पहले मैंने ये दिया था. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग बिकॉज आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई हैव गिवन एंड व्हेन आई गिव, बिकॉज आई एम सो मच इनटू ट्रांस, आई एम सो मच इनटू overwhelming gratitude that I have something to give that I never keep account of what I give. Don't do that. तो आपका मन शांत नहीं रहेगा अगर आप इस तरीके से देंगे. So learn the art of giving, learn how to give it to the society, to the people, to the nature, to the universe back. But when you give and forget. नेकी कर दरिया में डाल. ये आपको मूल मंत्र होना चाहिए इस हफ्ते. और आप बिलीव करिए जब आप इस तरीके से देंगे तो you will see that universe is going to bless you with a lot of miracles. It is going to bless you with a lot of things, good things, and your life will be definitely much more easier. ग्रेस जब आ जाता है और ग्रैटिट्यूड के साथ आता है तो लाइफ सेट हो जाती है, सॉर्टेड हो जाती है. So learn the art of giving and give unconditionally. Don't keep a count that इतना दिया उतना दिया, ऐसे दिया उसको दिया. Don't do that. Give and forget. And the last card, the ocean, जो कि माँ भुवनेश्वरी के कार्ड से कनेक्टेड है. So guys, please keep yourself hydrated. Spend time near the ocean. नहीं है ओशन तो मैं एक इजी टेक्निक आपको बताती हूँ. जिन्होंने भी नंबर 4 कार्ड चूज किया है कि आप एक ग्लास टम्बलर में, एक कांच के ग्लास में आप पानी ले लीजिए एंड उसको अगर आप थोड़ा ग्रीन लीव्स अगर आपको घर पे मिल जाए या आपके पास कोई गमला है, पॉट है, आप उस पॉट में उस ग्लास को पानी को भर के रख दीजिए. कीप इट फॉर 15-20 मिनट्स एंड देन ड्रिंक द वाटर. ठीक है. तो या तो वो भी नहीं कर सकते हैं तो हरे पत्ते अगर आपको कहीं से बड़े मिल जाएं किसी भी प्लांट के, हेल्दी प्लांट के, कीप देम ऑन द टेबल. उसके ऊपर आप कांच के ग्लास में पानी भर के अब रखिए एंड देन ड्रिंक द वाटर आफ्टर 15-20 मिनट्स. इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिलीफ. मदर नेचर की आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो एनर्जी, तो इनडायरेक्टली लेना सीख लीजिए. सो डू दैट एंड इट्स अ वेरी सिंपल रिचुअल. Keep a glass of water into some pot, into some green pot. आप गमले में रख दीजिए या leaves पे रख दीजिए अपने ऑफिस में. Spread some leaves and keep a glass of water onto it, and after 15-20 minutes you can drink that. That will bring a lot of relief. So deep blue sea, अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं, you have the privilege in Mumbai or somewhere where the water body is there. If you get time, though it is a phase where venturing out is not allowed, so this seems to be difficult to do, but drink a lot of water. Keep your feet, soak your feet into water when you come home from the office or you are staying at house. तो आप ये भी कर सकते हैं एक टब में या किसी वेसल में पानी लेके soak your feet. It will give a relief. It will give, आप पानी में जाके नदी में नहीं डाल सकते हैं, but if you soak your feet into tub or bucket, that will also be, bring some relief to you. So allow the power of the nature to wash away all your cares and concerns. जब पानी में आप पैर डालते हैं तो आपकी जितनी भी एनर्जी रहती है जो आपके फीट से वो पानी, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड यू फील मच लाइटर. सो दिस वाज द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स. रिकैप, हाइड्रेशन के 2 कार्ड्स हैं हमारे पास, माँ भुवनेश्वरी एंड द ओशन. सो प्लीज पे अटेंशन टू हाइड्रेशन. और हम देख पा रहे हैं कि दोनों कार्ड्स जो हैं एक ही मैसेज पे दे आर फोकसिंग. वाटर लेवल अपना चेक करिए. स्पेंड सम टाइम नियर अर्थ. अगेन दिस कार्ड इज ऑल्सो रीट्रीटिंग द सेम मैसेजेस. एंड गिव विथ ईज एंड जॉय.
So take care of your health, take care of your water element in your body, take care of your water intake, spend some time into nature and give back to the nature, and you'll receive manifold. So this was the reading, guys, from me. I loved doing the reading. मुझे इंतज़ार रहता है हमेशा आपके फीडबैक्स का. मुझे बहुत मज़ा आया रीडिंग करने में. अगर आपको सुनने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ do drop a feedback. It really makes my day. It feels good. And thank you for all the time and all the love and affection. We'll meet soon next week with the reading of the next week. Till then, take care, stay healthy, stay blessed.